in blue. Blue Warriors taking on the Royal Riders, where the toss went in favor of Blue Warriors. The captain Ravi, he had no hesitation on batting first. Two openers out in the middle, and let's place the call from the umpire. Right arm round the sticks to the right hander. Off the back foot he goes, finds the fence as well. What a start, what a way to get off the mark. What a way to mark, what a way to announce your arrival here at the stage. बेहतरीन शॉट यहाँ पर संजय द्वारा. I think it's an announcing statement that Blue Warriors are here to win. Commentators, just a second over here. 1 second. Okay, we have Team Extreme over here. बहुत ही अमेजिंग सा बैनर बना रहे हैं. अच्छा, आप सेकंड बैनर पे आ गए हो और यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं थर्ड बैनर. माय गॉड, आज सारे प्राइजेस टीम एक्सट्रीम लेकर जाने वाले ऐसे लग रहा है. प्लीज यहाँ पे आ जाओ. हाँ, वाह, व्हाट क्रिएटिविटी यू हैव यूज्ड. ट्रॉफी, ओके, प्ले स्पोर्ट्स के ऊपर ही बना है ना आपने एकदम. वेरी नाइस. टीम एक्सट्रीम, यस, शी हैज रिटन प्ले स्पोर्ट्स 2026. एक बार ऐसे दिखा दो. कम ऑन, लेट्स चीयर. ऐसे थम्स अप दिखाओ सब लोग. कम ऑन एवरीवन, चिल्लाएंगे. ओके, वाओ, थम्स अप दिखाओ. वाओ, ऑलराइट, थैंक यू गाइस. गर्ल्स, आवाज चाहिए. ठीक है, ऑन द काउंट. हाँ, ये भी दिखाओ. आधा तो आधा चलेगा. यो करके ऑन द काउंट ऑफ 3 आवाज आना चाहिए. ठीक है, 1 2 3. वाह, क्या बात है. नहीं आवाज आया गाइस. आवाज एवढाच आवाज आहे. अजून थोडंसं लास्ट टाइम. ठीक है, अच्छा, एक लास्ट. कम ऑन, वन मोर. नाही, ऑन द काउंट ऑफ 3 3 2 1. वाह, नाही केलं, नाश्ता नाही केलाय. थँक्यू गर्ल्स, तुम्ही कंटिन्यू करा. आम्ही थोड्या वेळात अजून येतो. You got me feeling, I see right
संजय परमार और सुजय शेट्टी की घातक सलामी जोड़ी क्रीज पर मौजूद ब्लू वॉरियर्स के लिए। और वहीं पर गेंदबाजी का भार संभाले हुए गेंदबाजी कर रहे हैं सुबोध जोशी। पहली गेंद पर 4 रन बटोरे थे और उसके बाद गेंद हवा में और सीधे खिलाड़ी के हाथों में। क्या वापसी की है, रास्ता दिखाया है यहां पर बल्लेबाज को पवेलियन का। संजय पहली गेंद में विजय हासिल करते हुए, लेकिन दूसरी गेंद में सुबोध जोशी ने बेहतरीन गेंदबाजी कर यहां पर संजय को सस्ते में पवेलियन का रुख कराया है। और अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं कप्तान खुद रवि ब्लू वॉरियर्स के। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। दोनों ही टीम एक ही शैली की, दोनों ही प्रबल दावेदार है इस टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी के हकदार हैं ये। A shot of a length delivery. He went aerial, goes after it, and the ball wins the race against the fielder. It's a boundary. Just like Sanjay, Ravi too gets off the mark in some fashion. Boundary to his name, high full toss delivery. But the long on his position there for the shots like that. 9 run on the board, first over in progress. You're watching the second game from the men's category. We are live from Air India Sports Ground, Mumbai. Play Sports Edition 9, 2026 it is. Wonderful shot, waits for it and cuts it through the point. So Sujay Shetty opens his account with a single. 10 runs on the board already, with the last ball to be bowled to finish off the over number 1. Subodh Joshi once again ready to roll his arm for the final time in this over. Right arm round the sticks to the right hander. Well, ball is in the air, long gone, getting underneath it. He spills it, and the ball will find the fence once again. It was well try. It was really a good shot, but at the same time, you know, he tried to save it. We all know how destructive Sujay and Ravi can become. We all know Sujay and Ravi will not take any half measures. Wherever there is an opportunity, they are going to strike the ball very hard. And they are going to, you know, score more than 12 to 13 runs per over. Well, that first boundary that was struck by Sanjay, that itself tells us that the approach that Blue Warriors will be playing this match Is going to be aggressive. the intention is pretty Extreme much aggressive. clear. Sanjay scored a boundary of the very first delivery, departs on the second one, but Ravi Razdan, he is looking in an ominous touch so far. 9 of just 3 deliveries to him. 14 is the score, follows a 1 wicket after 1 to bowl the second over. Nitin it is to bowl the second over from the man in yellow. Starts off with high full toss delivery. And Sujay Shetty, he is not happy with the bat, wants to change it. Royal Riders have a very good bowling lineup. Nitin himself can bowl, Subodh can bowl, Prashant can bowl. We all know how deadly Prashant can be, especially in death overs.
Very good shot, very good shot. And the speciality about the batsman is that, you know, even if there is no 4 or 6 coming, then at least the strike gets rotated. Well, I reckon the good thing about Ravi Razdan is that he has got the shots. He has got the all shots in the book. He can play the hook shot, he can play the off drive, he can play through the point, he can play straight over the boundary, over the side screen as well. Couple of runs added to the tally. Good running between the wickets. A long boundary, and this is the one thing that the batsmen have to keep in mind. So what if the boundary cannot be scored easily? You got to be very good between the wickets. Even if you run 2 runs in a ball, then still you can manage 12 runs per over. That is the calculation that will be there in their mind. And the beauty of this ground is that, yes, once you are settled, you can score the runs freely and easily, but at the same time, it tests your fitness as well. You got to be on toes, not only as a fielder, but as a batter, as a bowler as well. Oh, knocks him over. Look at Nitin, he is elated, and why not? The ball stump goes flat, and the batsman goes to the hut. Super bowling by Nitin himself. Blue Warriors will have to look out that, you know, they do not lose too many wickets in becoming too much aggressive. They have to also calculate in 2 overs, in less than 2 overs, they have already lost 2 wickets. Well, both the openers are back to the hut now within a span of 10 deliveries. At number 4, we have Ashish outside edge, no one at the point. Third man does well to come at that region and protects, and also restricted the batsman only to 1. Wonderful weather, sir. It's not too hot, not too cold at all. The kind of atmosphere you want to play. Nitin in his 5th ball. Oh, high full that's toss very delivery. good shot. Ravi And Razdan that's is a tall guy 4. himself. दो ओवर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसे कहते हैं जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना तो समस्या तो रोज है। और मौज मनाते हुए, यहाँ पर मौज करते हुए ब्लू वॉरियर्स के समर्थक बाउंड्री पर आप देख सकते हैं। एक टीम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं उससे ज्यादा उनके समर्थक वहां पर नजर आएंगे आपको। Ravi, being the captain, is taking head on. He has scored really nice. I think his strike rate is almost 300. रवि राजदान पे सर अगर बात करें, he has scored 14 runs in 5 balls, approximately 280 to 300 is the strike rate. Phenomenal. Third over about to start. Loganathan. Loganathan is the new bowler. Loganathan is also a good bowler, as we all know. Well, how good a bowler he is, it all depends how well he bowls against Ravi Razdan. As we say, each and every player has to, you know, perform in each and every game, no matter what is his records and what he has done so far. That doesn't matter.
Wonderful delivery. Goal, and it's a pretty good. Pretty much right on the money. Run out opportunity. And Ashish gone. Ashish has been sold down the river by his partner. एक तोहफे में विकेट दे दिया है ब्लू वॉरियर्स ने यहाँ पर रॉयल राइडर्स को। दूसरा रन अगर आप जब भी लेना चाहें तो पहला रन आपको बहुत तेज पूरा लेना चाहिए, और कॉल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, आप दोनों का तालमेल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी प्रकार हमने पहले मैच में भी देखा हाउ कैजुअल गीतेश वाज, आई थिंक मोर और लेस द सेम वे। और ये बहुत ही शानदार शॉट और ये चौका। Ravi wants to keep the momentum going on because he knows that there are only 7 overs, and even if each over there is 1 wicket lost, still they will be safe. But the momentum has to go on. So in 3 overs, 3 wickets are already down. But at the same time, he is firm and he is hitting hard. और जिस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं रवि राजदान, मुझे कहीं ना कहीं मोहम्मद अजरुद्दीन की याद दिलाते हैं। कुछ इसी प्रकार की वही उनका सांस देखिए, बहुत ही लेजी अप्रोच है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अग्रेसिव, और वो बाउंड्री मार के कुछ करते भी नहीं है, वो विकेट के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। Mohammad Azharuddin, one of the legends of the game, one of the best player to represent the country, one of the finest captain as well. अगली बॉल ये देखिए, जिसके लिए लोकनाथन को लाया था कप्तान ने। तो चलिए, एक प्रॉमिसिंग पारी का यहां पर अंत हुआ है, कप्तान के पारी का अंत हुआ है। रवि जो कि 19 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं महज 8 गेंदों में। तो आगे वाली गेंद को पीछे खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया है। जब आप एकेडमी में जाएंगे ना, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यही मिलता है, पहले तो आप वी में खेलिए, मिड ऑन और मिड ऑफ को टारगेट कीजिए, और दूसरी गलती ये मत कीजिए कि आगे की गेंद को पीछे खेलने की गलती अगर ये कोच देख लेते तो इन्हें अभी 10 राउंड का पनिशमेंट मिलता। और कहीं ना कहीं लोकनाथन has proved himself, and Red Rangers will be thinking that have we made mistake by swapping? No, we did not swap. He ran away. Just like Shreyas Iyer from KKR, you mean? All right then. Loganathan, he has got uncanny action, very unorthodox. इनके एक्शन के वजह से बल्लेबाज कहीं ना कहीं चकमा खा जाता है। राइट हैंडर सोहेल तनवीर, there you go. Oh, opportunity, fielder in the deep, and he has taken it.
क्या बात है। 29 for 5 wickets. I think Blue Warriors have to, rethink themselves, the strategy. They have been too much aggressive, but in the same time, they have lost too many wickets. देखिए योद्धा वॉरियर्स मतलब योद्धा, ब्लू वॉरियर्स योद्धा हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं ना, कुछ खिलाड़ी जो होते हैं दबाव में बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। दबाव में तो जरूर है ब्लू वॉरियर्स, लेकिन ये कुछ ऐसे पल होते हैं, यही तो मौका है ना नए खिलाड़ियों को अपने आप को प्रूव करने का। मौका मिला है यहाँ पर मनोज शर्मा और प्रथमेश को यहां से अपनी टीम की पारी को संवारने का और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने का। प्रथमेश के पास एक स्किल है, वो कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया हुआ है। देखिए समझदारी का परिचय देना होगा बल्लेबाजों को, आप हर गेंद में बड़ा शॉट खेल नहीं सकते। यही गलती देखने मिला था वैभव सूर्यवंशी द्वारा। अंडर 19 का एशिया कप का फाइनल मुकाबला था, बहुत बड़ा स्कोर का पीछा करने उतरे थे और शुरुआत बेहतरीन मिली थी वैभव सूर्यवंशी को। छक्के से शुरुआत की थी पारी की और महज 14 गेंद में जड़ दिए थे 29 रन, लेकिन वो कैरी डबल हो गए। भावनाओं को रोक नहीं पाए, अपना शॉट खेलते गए और भारत विकेट गंवाते गया और बहुत बड़े मार्जिन से वो फाइनल को मुकाबला हार गया था पाकिस्तान से। तो इसी प्रकार की गलतियों से बचना होगा ब्लू वॉरियर्स को। ये बढ़िया शॉट है, बढ़िया विकल्प भी है, कुछ समय अपना जरूर लें, सिंगल और डबल से काम चलाएं, इंतजार करें खराब गेंद का और जड़ दें 4-6 जब भी मौका मिले। रन देखिए खराब नहीं है सर, 3 ओवर 30 रन बने हैं, लेकिन विकेट पे जब आपकी नजरें जाएंगी और अगर आप समर्थक होगी ब्लू वॉरियर्स के तो आप सवाल जरूर करेंगे शॉट सिलेक्शन पर। और फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, रॉयल राइडर्स हैव मैनेज्ड, even if in the first 2 overs they were hit hard, but they have come back strongly. They have picked up 5 wickets, they have controlled the innings, and I think another 4 overs are still left. और देखिए ये मौका है, they would think that they can wrap up Blue Warriors within next 2 to 3 overs under 50. जी बिल्कुल, जब आपको मोमेंटम मिले तो आप इंतजार ना करें कि उस मोमेंटम को जाने ना दें। 5 विकेट्स गंवा दिए हैं विपक्षी टीम ने, 5 विकेट और चाहिए तो आपके जो स्ट्राइक बॉलर हैं उससे गेंदबाजी कराकर आप विकेट की तलाश जारी रखिए। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक सुबोध इज कमिंग बैक फॉर हिज सेकंड ओवर। सुबोध जोशी, और अच्छी बात यह है ब्लू वॉरियर्स के लिए फिलहाल कि दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर है। जब भी दाएं हाथ की और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं, गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता गेंदबाजी करना, अपने लाइन और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ये देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था, अगर यही गेंद राइट हैंडर के लिए होता तो वो एक शानदार गेंद होती, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये वाइड करार आया है। सुबोध को अपनी लाइन एंड लेंथ पकड़ के रखनी है। सुबोध के कप्तान आनंद सर डेफिनेटली वो चाहेंगे कि एक्स्ट्रास ना हो। डाउन द लेग लगातार 2 डाउन द लेग लगातार 2 वाइड गेंद के साथ रनों में इजाफा होता हुआ ब्लू वॉरियर्स 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहला मुकाबला जो हुआ था रेड रेंजर्स और एक्सट्रीम के बीच 72 रन भी काफी नहीं थे सर। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लुकिंग एट दी बैटिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉयल राइडर्स, आई थिंक 80 प्लस इज द डिसेंट स्कोर। और मैं टॉस टाइम वोंट बी अ विनिंग स्कोर दो, और विनिंग स्कोर क्या है ये तो हमें अभी तक पता बिल्कुल भी नहीं चला है और पता चलेगा भी नहीं। 1 रन। और टॉस के दौरान मैंने कप्तान से पूछा था, नितिन से, ब्लू राइडर्स के रॉयल राइडर्स के कप्तान से, और उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उनकी टीम 2 महीनों से इस मुकाबले की, इस दिन के, इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन जारी था उनका। और ये जब स्कोर जी बिल्कुल, ये स्कोर बोर्ड जस्टिफाई करता है उस प्रिपरेशन को। 33 रन 5 विकेट।
एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन यकीनन ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए चली जाती, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई निर्णय नहीं, तो यकीनन कुछ कोई भाग जरूर लगा होगा बल्ले का। इसीलिए लेग बाय का इशारा नहीं किया। राघव जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस मैच पे? आपका ये तो बहुत ही मज़ेदार मैच होगा अगर और छक्के चाहिए। अभी सुबोध बहुत अच्छी गेंद अरुण के हाथ में। ये बढ़िया बल्लेबाजी प्रथमेश द्वारा, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में नजर भी नहीं आए हैं। प्रथमेश का एक HR का तरीका है, जल्दबाजी कभी करते नहीं है वो। आराम से आराम से आराम से। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं, अब आ चुके हैं आपको हम बॉक्स में सर, वेलकम। वाह सुबोध, आपको लग रहा है ये इसका जलवा। गुड थ्रो, वन मोर अटेम्प्ट, आउट, अपील अपील। वेरी बहुत गुड ही एफर्ट, रिस्की, वेरी गुड एफर्ट। ये बहुत ही रिस्की सेकेंड रन था। अभी रिस्क लेना जरूरी भी है क्योंकि रन्स भी चाहिए स्कोर। रन तो बने हैं 37 रन, अभी 2 गेंदें बाकी है। सुबोध ने एक किफायती ओवर की है अब तक इस ओवर में। वेरी गुड हिट फ्रॉम मनोज, वो इट्स अ 6। सबसे छोटी बाउंड्री है ऑन साइड की। बोथ मनोज एंड प्रथमेश HR एंड रेस्पेक्टिव टीम में बहुत अच्छी तरह से उभर रहे अपना डिपार्टमेंट में। ये दिख रहा है अपना क्रिकेट में भी। ओ ब्यूटी। क्या शॉट खेला था लेकिन मनोज कुमार शर्मा जी ने वहां पर। सर रोज ये चने खाते सर, उसका नजरिया दिखता है इधर। ये इनसाइड स्टोरीज हमारे ये देखिए, ये रघुवेंद्र देखिए, जी। वाह सुबोध। क्या सेक्सी कैच था सुबोध। "44 for 6, 44 for 6, 44 for 6." In 4 overs, Blue Warriors have scored 44 runs. So they are scoring at the rate of 11 runs per over. But they have lost 6 wickets, which is too many wickets within just 4 overs. 3 more overs to go. Let's see how much they can score from here on. I think till now it's a decent score as far as runs go. "44 for 6. 44 is a good total after 4 overs, but losing 6 wickets, not an ideal situation to be in. Well, Blue Warriors, all depends on Prathamesh now. All relies on the shoulder of Prathamesh and Mr. Rathod, Sanket Rathod, who is at the non-striker's end at the moment.
These two batters need to bat sensibly. They have 18 deliveries to face in this inning. And if they score anything 25 plus from here on, anything 70 or beyond 70 run could be a challenging total. At least their bowlers will have something to fight for. And of course, they also have a very good bowlers. So, and that's a very good ball. As I was telling you, the Royal Riders have a very good bowling unit. Well, sir, but the one thing which surprises me and many spectators watching this match, Loganathan, he hasn't brought into the attack. It might be the strategy. Anand sir is very good at making the strategies. Meanwhile, it's the Behind the wicket, he is always in the match thinking of the strategies and which bowler to be bowled, which over, everything is set. And according to me, it is going as per their plan. well, many were expecting to see Loganathan once again in this over, but the captain has some other plan. The captain himself brought into the attack. Yes, it is Nitin is bowling the second over for himself. He has got a wicket, conceded 10 runs so far in his second over. 45 for 6 is the score. Half volley outside edge, no one in the sleep. I think Oh, he go third for a man. four. He just kicked the ball and the ball is going to the fence Running for away the 4. four. That's really nice shot. Oh, full toss और ये delivery. बहुत ही शानदार शॉट, Mid wicket. लेकिन अच्छी फील्डिंग. एक ही रन मिलेगा. और इसी एक रन के साथ ब्लू वॉरियर्स के 50 रन पूरे होते हुए 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर. फिफ्थ ओवर में 50 रन. आई थिंक मोर और लेस सभी टीमों ने फिफ्थ ओवर में ही 50 रन कंप्लीट किए हैं. तो यहां से लेके अभी 7th ओवर तक कितने रन बटोर सकते हैं वो देखना है. देखिए परिस्थिति जो भी हो ब्लू वॉरियर्स का इस मुकाबले में, लेकिन डगआउट खुश है, संतुष्ट है वो. और जिंदगी में देखिए संतुष्ट बहुत बड़ी चीज है. और इस बार गलती बिल्कुल भी नहीं किया फाइन लेग के खिलाड़ी ने. आसान सा कैच को पूरा किया और प्रथमेश को भेज दिया है पवेलियन वापस. कहीं ना कहीं दबाव में आते हुए प्रथमेश. सात विकेट गिर चुकी हैं. 7 विकेट्स आर डाउन. It's a 50. 50 for 7. 50 for 6. 7. क्या चल रहा है? नहीं नहीं कुछ भी. एलबीडब्ल्यू के लिए मेंस में एलबीडब्ल्यू भी अलाउड है. लेग बिफोर विकेट. पैर पे बॉल लगा और आप जस्ट अपने आगे खड़े हो, स्टंप के आगे था, आउट हो गया. हाँ
सिर्फ पैर पे नहीं, बॉडी का कहीं पे भी, बट 5 overs gone, 50 is the score. Follows of 7 wickets. Blue Warriors. Now the question is, will the Blue Warriors be able to play all 7 overs, or will they be bundled out? No, they will go for the last man tak. They will keep on hitting. That's the spirit of the Blue Warriors. We can see that. And still we are not seeing Loganathan into bowling attacks. Loganathan cannot bowl now because only 2 bowlers can bowl 2 overs. And both of them, Subodh and Nitin, has bowled 2 overs each. So for the next match, I think we have to be ready. The captain. Huh? धीमे हाथे, हल्के हाथे गेंद को टहला दिया है, मात्र दिशा दे दी ऑन साइड में। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। गेंदबाजी करने आए हैं निखिल, यहां पर उनका व्यक्तिगत पहला ओवर। और क्योंकि कोई भी सेट बल्लेबाज अब क्रीज पर मौजूद है नहीं, लेकिन आशा अभी भी यही है कि एक बड़ा ओवर जरूर आप संकेत खोज को- रहा है ब्लू वॉरियर्स। संकेत को आप धीरे में मत लीजिए क्योंकि संकेत इज ऑल्सो गुड प्लेयर। और ये सेकंड रन चुरा लिया है। ये चुरा ही लिया। और यही करने की जरूरत है। जब बाउंड्री आसानी से ना आए तो जहां सिंगल है उसे डबल में कन्वर्ट कर दीजिए। और कुछ उसी प्रकार का खेल का प्रदर्शन देखने मिल रहा है यहाँ पर। स्कोर बोर्ड रोटेट होना चाहिए, स्कोर बोर्ड मूविंग होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कहते हैं ना, तिनका जोड़े जा, जो मिला वो ओढ़े जा। गागर से सागर भरता है, ऐसे ही नहीं कहावत है ये। और जैसे कि राघवेंद्र जी ने कहा था कि भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो ब्लू वॉरियर्स की, लेकिन इनके बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने से नहीं कतराएंगे। और वही देखने में भी मिल रहा है। जो अप्रोच, जिस अप्रोच से पहली गेंद खेली थी, उस अप्रोच को कायम रखा है ब्लू वॉरियर्स ने। ये अप्रोच मुझे याद दिलाता है सर 2021 का वो जो वर्ल्ड कप मुकाबला भारत हारा था इंग्लैंड के साथ, और उसके बाद रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से जाकर कहा कि डीके भाई ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। और उसके बाद से रोहित शर्मा वर्जन 2.0 जो देखा है भारत ने, और जो अप्रोच देखा है भारत ने टीम इंडियन क्रिकेट का, वो एक कहानी है, वो एक इतिहास है। उसके बाद अब हर एक टीम थरथराती है जब भी भारत से मुकाबला होता है। तो उसके पहले मेरे को लग रहा है कि सब लोग अपने अपने स्कोर के लिए खेलते थे। कोई खिलाड़ी अगर 40 प्लस में है तो 50 के लिए खेलता, 90 प्लस है तो 100 के लिए खेलता। लेकिन वो पर्टिकुलर मैच के बाद में 6 ओवर के लिए 56 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, पहले सिर्फ एक वीरेंद्र सहवाग था, अब हर एक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग है। और इसीलिए एक समय ऐसा था कि 6 ओवर में 56 रन बहुत ही बेहतरीन स्कोर होते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे 6 ओवर में 56 रन तो आपको लगेगा नहीं, ये तो बहुत एवरेज स्कोर है। बहुत ही तेजी से क्रिकेट बदला है, सब कुछ बदला है। और कहीं ना कहीं इस बदलाव ने ये एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। करेक्ट। एग्रेशन जो है अभी, एग्रेसिव बैटिंग जो बोलते हैं कि बेसबॉल क्रिकेट, तो बेसबॉल क्रिकेट इज द न्यू फियरलेस क्रिकेट जो बोलते हैं। यस, द फियरलेस अप्रोच। उसी अप्रोच से, फियरलेस अप्रोच की मैं बात करूंगा। रेड रेंजर्स बहुत बढ़िया शुरुआत नहीं मिली थी उन्हें, लेकिन वो फियरलेस अप्रोच ही था उनके कप्तान अंबर का और उनके सलामी बल्लेबाज सुभाष का, जो उन्हें शुभम माफ कीजिए शुभम गड़े, जिसके बदौलत उन्हें एक जीत हासिल हुई है। आखिरी ओवर इस पारी की, रन बने हैं 56। बहुत ही शानदार शॉट और ये ले लिया है।
एक भी कैच नहीं छोड़ा है अभी तक रॉयल राइडर्स ने। और ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है राइडर्स के लिए। छप्पन रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे शुभम गड़े, और हमारे पास ही बैठे हैं कॉम बॉक्स के कुछ ही गज दूर, जुड़ेंगे वो हमसे इस पारी के समाप्ति के बाद। मैन ऑफ द मैच पहले मुकाबले के मेंस कैटेगरी राइट रेंजर्स के सलामी बल्लेबाज और विकेट कीपर। फुल टॉस की ये गेंद और कोई भी खिलाड़ी है नहीं है मिड विकेट के क्षेत्र में, 4 रन मिल जाएंगे। जबरदस्त शॉट। तो एग्रेशन नहीं छोड़ रहे हैं रॉयल अपना ब्लू वॉरियर्स। देखिए आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए आसमान होता है। 60 रन बने हैं, 3 गेंदें बाकी है। तो रन इज 63 60 60 60 2 गेंदें बाकी है। देखिए पार्थ कितने 4 या 6 हो जाए, संकेत चूकेंगे नहीं अगर उनको बॉल ऐसी मिली। लोगाधन लोगनाथन तो कुछ भी नहीं गलत कर सकते आज। गेंदबाजी में 6 रन दिया, 2 विकेट हासिल की और एक बेहतरीन कैच के साथ इस पारी की समाप्ति कर दी है। 63 रन बने हैं, 64 रनों की जरूरत है। 63 for 9 64 runs to win। डीजे थैंक यू डीजे। और इस पारी के साथ अब लंच के काउंटर भी खुल चुके हैं। आए हुए मेहमानों से, समर्थकों से, खेल प्रेमियों से जिसका मुकाबला नहीं है वो जाकर जल्द से जल्द लंच कर लें। आप भी जाइए सर, हमारे कॉम्बॉक्स धन्यवाद श्रेय सर और राघव सर का, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। डीजे ऑल योर्स।
Hello. Requesting once again the captains of Phoenix Squad and Dynamic Divas to kindly report near Shamiana for the toss. चौसठ रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुके हैं अरुण और वैभव। गेंदबाजी का भार संभाला है मनोज ने। सोनम कोटक, आप जहां कहीं भी हैं कृपया शामियाना के पास आइए टॉस के लिए। Well, Manoj is not happy with the wicket-keeper's performance there. हेलो। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है और कुछ इसी तरीके से ब्लू वॉरियर्स को अपनी परफॉर्मेंस को संभालना पड़ेगा। क्या बात है, प्रणय जी अपने एलिमेंट में धीरे धीरे आते हुए। Sonam from Dynamic Divas, the captain from Dynamic Divas, wherever you are. Kindly report for the toss. सात समंदर पार कर सोनम जी आते हुए टॉस के लिए, अगले मुकाबले के लिए रेडी। प्राची फिनिक्स स्क्वाड की तरफ से इंतजार कर रहे हैं। कैच इट का कॉल, बहरहाल वहां पर वाइड +1। इस ओवर में अब तक गेंदबाज का साथ पूरी तरीके से विकेट कीपर ने निभाया है नहीं, लेकिन सवाल अभी भी यही किया जाएगा, क्या वो विकेट कीपिंग ग्लव्स की जरूरत है? क्योंकि टेनिस गेंद जो होती है लेदर बॉल के कंपेयर से छोटी गेंद होती है, और अगर आप यूज टू नहीं है उस ग्लव्स से तो ना यूज करें। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया दृश्य ये नजर आ रहा है। देखिए, आप क्रिकेट का मुकाबला खेल रहे हैं, आपके पीछे से आसमान, विमान आसमान में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाता हुआ, इससे बढ़िया दृश्य क्या ही हो सकता है। बहुत ही बढ़िया वातावरण है ये। प्ले स्पोर्ट्स 2026 आए हुए सभी खेल प्रेमियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं। और चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म कर दिया है सोनम ने। सोनम मौजूद हमारे साथ, ज्योति जी टॉस का ऑनर करने के लिए, और प्राची फिनिक्स स्क्वाड को लीड करते हुए। आप में से कौन टॉस का कॉल करेगा? Who will call? Prachi will call. Jyoti ma'am will spin it. Head is the call from Prachi, and head it is. Prachi, Phoenix squad winning the toss. What have you decided? We are going for bowling. Any particular reason behind that decision? No, it's just our first match, so we go for bowling first. Have you girls watched the first match that was played between Dynamic Divas and Elite? Yes. But stay with our decision. Bowling will do. All right then. Second match, and once again the toss didn't go in your favor. What have you learned from the first game, by the way? Nothing but patiently keep playing the game, make the fielding strong, and let's see what, because planning is one thing and playing on the ground is execution part is another thing. Let's see, we'll play. First match, you girls batted first, scored 29 runs. Second match, once again batting first. Any changes in strategies? No changes, no, we'll just score. Let's see what score can we make. All right then, thank you girls. And news from the center is the toss went in favor of Phoenix squad and they are bowling first.
And with that, what a towering maximum from the batsman. और जैसे ही रॉयल राइडर्स ने ये अनाउंसमेंट सुना था कि लंच के काउंटर खुल चुके हैं, थोड़े बल्लेबाज अब जल्दबाजी करते हुए वो देर नहीं करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये मुकाबला जीतना चाहते हैं और लुफ्त उठाना चाहते हैं भोजन का। 18 रन बिना किसी नुकसान, दूसरा ओवर गतिमान। स्वागत किया है यहां पर अरुण ने स्वागत किया था गेंदबाज एडविन का, एडविन बेबी, कुछ इस प्रकार का इनका नाम शो कर रहा है क्रिक हीरोज पे। और अब देखिए महज 45 रन चाहिए 35 गेंदों में। फुल टॉस की गेंद, नाखुश जरूर होंगे अपने आप से बल्लेबाज, जिस प्रकार की बल्लेबाजी किए थे ये तो तोहफा था और उस तोहफे को चौके या छक्के में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। और हमारे साथ अब जुड़ेंगे बहुत ही स्टाइलिश और डैशिंग पर्सनालिटी कैरी करते हुए प्रणय जी, ऊंचे काठी के लंबे खिलाड़ी हैं ये। अपील की जा रही है लेकिन अंपायर का निर्णय वाइड बॉल डाउन द लेग, वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील स्वागत के लिए। जो आपने लिखा है ये आपको माइक में बोलना होगा बिना देखे। ये लिरिक्स किसने लिखा है? एक लिरिसिस्ट को उसको जरूरत नहीं होती है देख के पढ़ने की। एक बार फिर गेंद जा चुकी है तारामंडल में, गेंद गई है सैर करने, देकर जाएगी 6 रन। कमाल का शॉट बल्लेबाज द्वारा। अरुण पुजारी क्या शानदार बल्लेबाजी किया है अब तक इस बल्लेबाज ने। बहुत से लोग अब फैन हो चुके हैं अरुण पुजारी के बल्लेबाजी का। 317 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ ये धुरंधर बल्लेबाज, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कह सकते हैं। और 2 रन के साथ 2 ओवर का खेल पूरा, 31 रन बिना किसी नुकसान के। इसीलिए कहते हैं ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यहां पर अब पर खोलने का समय आ चुका है, ब्लू वॉरियर्स का विकेट झटकने का समय आ चुका है। अगर इस 1-2 ओवर में विकेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो काफी देर हो जाएगी इस मुकाबले में। "31 is the score. 31 without losing a wicket after 2. And the bowler is Ashish.
गेंदबाज तो बदल गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, और वो है सिलसिला रन का। एक्स्ट्रास का सिलसिला कायम है, जारी है, और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए रॉयल राइडर्स। 2 ओवर 32 रन। इस ओवर में अपना रवैया बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी को देखते हुए बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रॉयल राइडर्स 35 रन बिना किसी नुकसान के, 2.3 ओवर 29 रन चाहिए 27 गेंद में। विकेट्स की दरकार है, विकेट्स की मांग है, विकेट्स की पुकार है यहां पर ब्लू वॉरियर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कुछ इसी प्रकार का एफर्ट मनोबल बढ़ाएगा ना सिर्फ गेंदबाज का, बाकी अन्य खिलाड़ियों का। भाई देखिए बॉडी लैंग्वेज एकदम से बदल चुका है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। क्या ये वो संकेत है कि पहला विकेट आसपास? खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, लेकिन गेंद गई है अंदरूनी किनारा लेकर। कवर के क्षेत्र में डीप कवर के खिलाड़ी तैनात, वहां पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 37 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, बेहतरीन ओवर घटाइए आशीष मेहता द्वारा, मात्र 6 रन खर्च किए अब तक। ओवर की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं, इसीलिए कहते अंत भला तो सब भला। 3 ओवर 41 रन बिना किसी नुकसान के। और अब विकेट की तलाश में कप्तान ने खुद पर भरोसा जताया है, खुद को गेंदबाजी पर लाया है। रवि जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी किया था, जिस प्रकार उनकी बल्लेबाजी थी कुछ उसी प्रकार की अब गेंदबाजी का भी मुजाहरा पेश करने की उम्मीद से गेंदबाजी करने आए हैं ब्लू वॉरियर्स के कप्तान रवि। रिक्वायर्ड रन रेट जो है पहली बार 6 के अंदर, पूरे कंट्रोल में है रॉयल राइडर्स इस मुकाबले में। सारे विकेट्स हाथ में और रन बन गए हैं 42 रन। 13.26 का रन रेट है ये। पटकी हुई गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद उनके ऊपर से जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन के लिए। तो गेंद और रन का वो जो फासला था उसे बढ़ाता हुआ ये बल्लेबाज वैभव। पिछले कुछ ओवर में अरुण पुजारी थोड़े शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन वैभव इन्होंने अपना गियर शिफ्ट कर लिया है। 46 रन बन चुके हैं। अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रही है इस टूर्नामेंट की रॉयल राइडर्स की तरफ से। ये देखिए दबाव साफ झलकता हुआ।
ये बढ़िया गेंद है और दर्शनीय स्ट्रोक। क्या बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इसे खेल दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। इसलिए कहते हैं गेंदबाज उस बल्लेबाज से नहीं घबराता जो बल्लेबाज सिर्फ 6 हिटिंग करता है। गेंदबाज उस बल्लेबाज से ज्यादा घबराता है जिसके पास हर एक शॉट अवेलेबल हो। और इस एक रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए रॉयल राइडर्स के 50 रन बिना किसी नुकसान के। क्या सलामी जोड़ी है ये, वैभव और अरुण पुजारी की जोड़ी। छा गए गुरु, ये बिल्कुल छा भी गए और हर किसी को भा भी गए हैं। मात्र 14 रनों की दरकार 20 गेंदों में। शॉट है बेहतरीन और नतीजा है 2 रन। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर। अंत समय में कुछ ही गज दूर गेंद को रोका और यहां पर तालमेल ना सिर्फ दोनों बल्लेबाजों के बीच देखी गई, बस खिलाड़ियों के बीच भी बढ़िया तालमेल देखने मिला बाउंड्री पर। उसी तालमेल के बदौलत 2 रन और जुड़ गए हैं रॉयल राइडर्स के खाते में। ये देखिए अब फिटनेस का परिचय दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जब भी मौका मिला जड़ दिया 4 और 6, और जब मौका नहीं मिला तो मौका बनाया है इन बल्लेबाजों ने। 4 ओवर 54 रन बिना किसी नुकसान के, और अब जीत के लिए चाहिए मात्र 10 रन। मेंस कैटेगरी का यह दूसरा मुकाबला है और अब तक अगर देखे जाए तो 3 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला विमेंस कैटेगरी में चेस हो गया 30 रन आसानी से। मेंस कैटेगरी का पहला मुकाबला आसानी से 72 रन चेस हो गया, और एक और आसान सा चेस देखने मिल रहा है हमें इस प्ले स्पोर्ट्स 2026 के एक बेहतरीन टूर्नामेंट में। चार ओवर 54 रन बिना किसी नुकसान पे विकेट लेने की उम्मीद से गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज। जितनी तेज गेंद उससे भी तेज प्रहार, और गेंद गई है सीमा पार 4 रन के लिए। जी हां, शॉट को मारने के बाद मानो बल्लेबाज मनोज को कह रहे हैं, द क्विकर यू बॉल द क्विकर it will fly from my bat. One big shot away from a glorious victory, Royal Riders. Oh my goodness, what a shot. Fine shot, but irony is that it will only fetch them a couple of runs. 60 on the board and they are only short of 4 runs. 1 boundary away and it's gonna be victory for Royal Riders in this match. Into the block hole. Straight down the ground, long on in the business. Who's gonna play the winning shot? Is the question here now. Arun Pujari, 32 of 15 deliveries. Weber, 22 of 12 deliveries. Both the batsmen, they haven't put their foot wrong in this match. In this inning, rather. And is this the moment? Is this the moment? And yes, it is. It's a boundary. And Royal Riders can celebrate. It's a one-sided affair. And they have clinched a victory against Blue Warriors in the second match of the men's category. Royal Riders, celebrations and photography please out of the ground. We need to prepare for the next match.
Royal Riders, kindly celebrate out of the ground. It's a request. We need to prepare for the next match. Next two teams, kindly be ready.